A very warm good morning to each and every one of you present here. Today, on this platform of Sage Talk, we have with us Alka Arya ma'am. We welcome you, ma'am, to the Sage Group. On behalf of SIRT Pharmacy and Sage Group, we welcome you to the Sage Talk series. Most welcome, ma'am. Uh, now, before Thank you proceeding, very much. welcome, ma'am. Now, before proceeding, I would like to introduce all our participants with Alka ma'am. Alka ma'am holds a degree in architecture from Indore, followed by her master's degree in city and regional planning from Delhi. She served eminent real estate Gurgaon-based MNC, wherein she was nominated to represent India in India-China Exchange Program at Shanghai in 2007. She also holds 4 years of corporate experience and joined Delhi Development Authority at Delhi, which is one of the biggest planning and development government authority in India and across the globe. Then after she was married to a cardiologist, having two kids. She is since last 10 years serving the government. Inspired by the scientific Vedic civilization, she is currently practicing yoga since last 12 years and weekly Vedic yajna, which is Havan, sincerely since last 4 years, and many more to tell about Alka ma'am. So before wasting any time, we will proceed forward. Ma'am, with your permission, I would like to play a short introductory video about our SAGE group, if you permit me. Sure, please. Okay, ma'am.
Ma'am, this was a short introductory video about our SAGE group. Now with this, I would like to invite you to please take over the audience. Thank you, Vicky. Am Thank I you. audible? Is it coming nice? Yes, ma'am, you're Okay. audible. So, namaskar, everyone. Thank you, SAGE Group. Thank you very much to Engineer Sanjeev Agarwal ji, the Chancellor of the University. Thank you, Dr. Surendra Jain ji, who's the Director of the CERT Pharmacy. Thank you, Priyanka and Dheeraj, who asked me to do this. And thank you to all the elating souls who have gathered here to listen to some of my wisdom, which I have gathered during this short span or short human existence I have lived. Also, through a little bit of reading, I could manage parallelly while pursuing things which were mandatory for a livelihood. So that's all I would be sharing. So before I start, I say a karbad namaste to jo bhi mujhe sun pa rahe hain. Let me start this session by asking you a basic question. What is the prime function of a human being that is distinct from animals, from plants, from other single cellular organisms? Don't say reproduction, we all reproduce. So what's that prime function that makes us distinct? See, the answer to this would be the prime function of a human being is to acquire knowledge, accept the truth, leave the untruth, and while accepting the truth, put it into karma and upasana, the two strong pillars, and then enjoy this beautiful journey called life. This is so jubilant. We just don't pay much attention to it. It's a wonderful life. मगर हमें इसे जीने के तरीके ढूंढने होंगे जो परम आनंद जिसके लिए हम अस्तित्व में आए हैं उनके लिए ये तीन स्तंभ जानने जरूरी हैं. And I bet you all, I can give it to you in writing, that when you leave this Zoom meeting, you will definitely be upgraded with something that is directly coming from the Vedas to the level you have never thought of. जब हम Zoom मीटिंग में आए होंगे जो हमारा मानसिक स्तर होगा और जब यहाँ से आप जाओगे आपके पास जरूर आपके ब्रेन बॉडी के लिए कुछ ऐसे हैंडफुल थॉट्स होंगे जो आपको आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी देंगे और utmost required is the clarity. हम clarity बहुत लैग करते हैं इसलिए we are just wondering. तो इस आंसर को देने के लिए कि acquisition of knowledge, accepting the truth, leaving the untruth, putting it to karma and upasana. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे आपने ज्ञान अर्जित किया कि अग्नि बहुत ज्वलनशील होती है, बहुत तेज होती है. इस अग्नि को अगर आपने इसके यथावत रूप में जान लिया है तो आप इसे साध सकते हो. आप ये जानते हो कि ये हमारे धन, अनाज, इन सबको जलाकर राख कर सकती है और आपको ये भी पता है कि ये एनर्जी गिविंग सोर्स है. तो अगर आप इसको फिर सकारात्मक होके किसी प्रोडक्टिव यूज में लेंगे तो ये आपको सुख की प्राप्ति कराएगी, चरम सुख की प्राप्ति कराएगी. और अगर ये अपने डिस्ट्रक्टिव वे में जाएगी तो आपको कष्ट होंगे. तो जिस तरह से अग्नि के पूरे अस्तित्व को, प्रारूप को जानकर हमें अग्नि को साधना है और अपने लिए उसे टूल बनाना है, ये मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं. ये एनिमल्स नहीं कर सकते अच्छी तरह से, प्लांट्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते. तो यही हमारा ज्ञान हमें एकत्रित करना है. मैं एक और वेद के बहुत सुंदर टॉपिक पर आना चाहूंगी जो उपासना के लिए है. उपासना से रिलेटेड दो शब्द हैं या आप इनको सवाल भी कह सकते हैं कि उपासना किसकी की जाए और किस तरह से की जाए. तो हम पहले लेते हैं उपासना किस तरह से की जाए. उपासना का देखिए बहुत कोई बड़ा इट्स अ टैबू इन आवर सोसाइटी कि हम बहुत ज्यादा इसमें जाते नहीं है. उपासना बहुत सिंपल है. आप किसी ऐसी चीज के बहुत अच्छे गुण अपने अंदर ले लेते हो जो आपको अपग्रेड करें अपने अंदर. तो आप मुझसे ये कह सकते हैं कि फिर मैम उपासना हम गुरु की भी कर सकते हैं, गुरु में बड़े अच्छे गुण होते हैं. उपासना माता पिता की भी कर सकते हैं, पर्वतों की कर सकते हैं, नदियों की कर सकते हैं. उपासना हम इन सारी वस्तुओं की कर सकते हैं, मगर फिर हम जब उनके अच्छे गुण अपने अंदर लाएंगे तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी. नदी जितना अपना असीम चरम जानती है उसी को हम जान पाएंगे और उतना ही अपग्रेड हो पाएंगे. तो क्यों ना उपासना उसकी की जाए जो इन सब पदार्थों का भी रचयिता है, करता है. तो वेद बहुत क्लियरली ये कहता है कि
उपासना उसी की करने योग्य है जिसका वो गुरु भी बनाया हुआ है, जिसके वो माता पिता भी बनाए हुए हैं, जिसकी ये पूरी सृष्टि निर्मित है जिसके द्वारा. Have you ever wondered that why there has not been a single instance in our human civilization when Earth has stopped rotating along its axis? Or can you give me a single instance when the Earth had stopped rotating around the sun? A single instance in entire history of mankind when human beings have seen from foot, देखना जिसे हम कहते हैं, a single instant where a human being has seen or listened from the palms, श्रुति जिसे हम कहते हैं, क्या हमने कभी अपनी हथेली से सुना होगा? क्या कभी किसी पुरुष ने गर्भ धारण किया होगा? आप देखिए ये कितने प्रिसाइजली प्लेस्ड हैं. हम इन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते. ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि एक्सेस अब सेकंड्स के लिए भी इधर से उधर नहीं होती. जुपिटर कभी जंप होके अर्थ पर नहीं आता, अर्थ कभी जंप होके जुपिटर की स्थिति पर नहीं जाता. तो इस ब्रह्मांड का रचयिता जो इतने प्रिसाइजली इनको चला रहा है बिना त्रुटि के, और ऐसे ही असंख्यों ब्रह्मांड चल रहे हैं, असंख्यों पृथ्वियां हैं, असंख्यों सूर्य हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. तो हम अपनी शक्ति से जहां तक पहुंच सकते हैं हम उसे ही बहुत महान मानते हैं. और उसकी शक्ति देखिए परमपिता परमेश्वर की, जिसने ये सारा रचा और इनको कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है. तो उपासना उसकी करने योग्य है. एंड प्लीज आई जस्ट कोट इट हियर. इसको किसी धर्म संप्रदाय इससे मत बांधिएगा. इट्स अ प्योर साइंटिफिक नॉलेज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द वेदा टू अपग्रेड यू ऑल. ये किसी उसका नहीं है. जब से मनुष्यता थी मनुष्यता रहेगी, मानवता थी मानवता रहेगी, वेद तब तक रहेंगे, आपको यूं ही ज्ञान से सराबोर करते रहेंगे. सो लेट्स सी फिर ये ईश्वर के क्या गुण कर्म स्वभाव है, इसको किस तरह से जाना जाए. जो वेद बहुत साफ साफ लिखता है कि जो ये सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला है, उसका पालन करने वाला है, उसका संहार करने वाला है, उसको किस रूप में जाना जाए. वो सच्चिदानंद स्वरूप है. अभी हमने बात की जो चरम आनंद की प्राप्ति होती है वो सदैव आनंद की स्थिति में रहता है. वो निराकार है. हम कहते भी हैं तुम हो एक अगोचर, that you are single and you are not visible from our eyes. We have limited capacity. We can see few things. Microscope हमने develop किया with our brain and developed kind of intellect, but still वो निराकार है. हम उसे आकार में नहीं बांध पाएंगे. वो सर्वशक्तिमान है जिसकी शक्तियों का वर्णन अभी मैंने पीछे 3-4 वाक्यों में किया. वो न्यायकारी है. अब ये बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग है. आप देखिएगा न्यायकारी किस तरह से है. जैसे हम भारत देश में रहते हैं, हर देश का अपना एक संविधान होता है. ऐसे ही भारत देश का एक संविधान है और हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है. संविधान कहता है अगर आप देश में अच्छे सिटीजन की तरह रहते हैं तो आपको हो extraordinary for the benefit of whole, not for yourself but for the benefit of the whole. और अगर आपने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को आप गए हैं तो उसके लिए पीनल एक्शंस हैं. तो संविधान के ये बहुत क्लियरली लिखे हुए गुणकर्म स्वभाव हैं. और संविधान कभी हमारा पीछा नहीं करता कि एवरीडे दे चेक अस. उसने हमें फिर कर्तव्य करने में स्वतंत्र छोड़ा हुआ है. अगर हम अच्छे कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हमें उसके अनुरूप फल मिलेगा. अगर किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में है, we will be awarded with definitely imprisonment of or a death sentence. इसी तरह से ईश्वर भी न्यायकारी है. वो ये न्याय रखता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हुए हैं उन्हें अच्छे कर्मों का वो फल जरूर मिलेगा. और ऐसा नहीं है कि वो कभी इसी जन्म में हमें मिल जाए. हमें वो आगे निरंतर ये पृथ्वी चलती रहती है और हम डेफिनेटली बहुत सारी योनियों से होकर गुजर कर मनुष्य जन्म लेते हैं. और ये हर जन्म में जो हमारे कर्म फल हैं वो संस्कार रूप बन जाते हैं और उनका हमें फल भोगना पड़ता है. तो ईश्वर ये न्याय करता है कि जिसने अच्छा कार्य किया है उसको वो अच्छा फल मिलेगा ही, जिसने बुरा किया है वो बुरे को ही पाएगा. इफ यू सी sow a seed of apple plant, you will not reap or you will not harvest mangoes. That's for sure. तो ये हमारी इस सृष्टि की रचना में भी उतना यथावत संभव होता है.
अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा और आगे देखें कि ईश्वर के और क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, तो वो दयालु है। आप देखिए इतने रंगों की व्यवस्था, और हमें वो चक्षु दिए कि हम उन रंगों को पहचान सकें। लाल हरा रंग, जब अभी सावन चल रहा है, यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, कितना खूबसूरत ये हरे रंग का चारों तरफ हमारे फैला हुआ होता है। ऐसे ही रस, आम का रस है, या कई अनेकों अनेकों फलों का रस हमें जो दे रखा है। सो वो दयालु भी है, उसने इस सृष्टि की रचना की ताकि हम इन सारी सुखों की अनुभूति कर सकें, उस परम आनंद की अनुभूति कर सकें। वह अजन्मा है। See, this is one very basic and very clear message that Veds have given us, that these are three things which are not, we cannot define when they were born, and we can't define when they will be lapsed. तो ये तीन चीजें हैं जो नश्वर हैं, जिन्हें हम कहते हैं। इनमें ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो परमपिता परमेश्वर, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा आत्मा, जो हम सभी के अंदर है, पशुओं के अंदर है, मनुष्यों के अंदर है। तीसरा प्रकृति। देखिए इसको बहुत, आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति को आप इस न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तरफ से लीजिए। ये जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे सदैव से थे, सदैव रहेंगे। आपने न्यूटन की ये थ्योरी पढ़ी होगी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बिल्कुल वही वेद का सिद्धांत है। वो कह रहा है कि आप इन अणु परमाणुओं को न नष्ट कर सकते हैं, न कभी किसी न ये जन्म लेंगे। ये यथावत सृष्टि के अनादिकाल से थे। इनकी जस्ट कॉम्पोजिशन चेंज कर करके हमने दूसरे दूसरे द्रव्य बनाए। ईश्वर ने भी अपनी परम कृपा से, अपनी असीम सामर्थ्य से इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को जैसे वायु के जल के साथ जोड़े और जल बनाया, पृथ्वी के जोड़े, अग्नि के जोड़े, जल के जोड़े, वायु के जोड़े और मनुष्य बनाया। ये हम जानते भी हैं कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। सो इट इज जस्ट ही डिड विद हिज इमेंस कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, और हमें इस तरह से उसने रचा। तो आप ये उसकी अजन्मा जो है, ये आप इसको सदैव ध्यान रखिएगा। दिस इज वन लेवल अपग्रेडेशन, दैट दीज थ्री थिंग्स, परमपिता परमेश्वर, ये हम सबका ईश्वर है, सबका, पशुओं का भी, पेड़ों का भी, मनुष्य का भी, जो भी इस संस्कृति पे, इस जीवन में जी रहे हैं, उन सबका परम परमेश्वर एक ही है। वो अनंत है, निर्विकार है, कोई गलती नहीं है उसमें, कोई त्रुटि नहीं है। अनादि है, जिसकी हमने अभी बात की। अनुपम है, सर्वाधार है, सभी का है, सबका आधार, सभी का परमेश्वर है। सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, ही नोज एवरी बिट। क्योंकि ईश्वर के जो मुख्य कार्य हैं, उनमें से सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना और उसका संहार करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बहुत काम है, हमें अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करना। कर्म में हम स्वतंत्र हैं, वो कर्म में हमें बिल्कुल कभी नहीं कहेगा आप ये मत करो, ये मत करो। बस हमारे कॉन्शियस में ये डाला हुआ होता है कि हाँ, अगर ये किया तो भाई इसका बुरा परिणाम भी। तो ये बहुत संविधान की तरह बहुत क्लैरिटी रखते हैं। और अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है, जिसकी अभी हमने बात की कि ये सृष्टि करता है। तो ये बाय दिस वी एंड अप आवर फर्स्ट फेज डायरेक्टली फ्रॉम द वेदा, कि ईश्वर जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा, उसका क्या स्वरूप है, किस तरह से उसकी आराधना की जाए कि उसके ये सारे गुण लिए जाएं अपने अंदर और अपने आप को अपग्रेड किया जाए। अब हम इसके दूसरे पड़ाव पर जाते हैं। I'll ask this question, a very basic question to all of you. Do you know what's the life or what's the age of this earth? हमने जितनी तो भाई इनकी जो हिस्ट्री है, वेस्टर्न हिस्ट्री है, जो थोड़ी इधर उधर घूम गई कि भाई अब किस तरह से कहा जाए। हम तो कहते हैं 6000 साल पुरानी है, और फिर नहीं 13 के आसपास कर देते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट्स ने बताया कि भाई ये लगभग 13 अरब साल पुरानी है। मैं आपको आज एक नंबर बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और फिर इस पर शोध कीजिए, इसको पता कीजिए और इस नंबर को सदैव ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस सृष्टि में आप रह रहे हो, जहाँ की आप वायु ले रहे हो, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में तो हमें क्लियर नॉलेज होना चाहिए। तो वेद ये बताते हैं कि हमारी सृष्टि को आज की तिथि में 1 अरब 96 करोड़
8,53,118 वर्ष हो गए हैं। मोटा मोटा आप लें तो 2 अरब वर्ष की सृष्टि हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, वेरी एविटेबल क्वेश्चन, दैट कितने समय और सृष्टि रहनी है? क्योंकि आए दिन हमारे आसपास न्यूज आती है अब प्रलय हो जाएगा, अब प्रलय हो जाएगा, अब सृष्टि खत्म हो जाएगी। कभी आपने इस चीज को नोट किया, कभी जानना चाहा कि सृष्टि और कब तक चलनी है, क्या कोरोना काल अंत है? नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेद बहुत बहुत सीधे ढंग से ये आपको बताते हैं कि सृष्टि अभी 2 अरब 2.33 टू बी प्रिसाइज, आई टेल यू, 2 अरब 33 करोड़ 32,26,882 साल और सृष्टि को रहना है। तो मोटा मोटा आप ले लीजिए कि 2 अरब वर्ष हो चुके हैं, लगभग 2.3 अरब वर्ष और हमें सृष्टि रहेगी, सृष्टि रचना होगी। अब आप इसको थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि भाई हाउ प्रिसाइज वेदास डिफाइन दिस। देखिए, वेद एक इस तरह का गुण भाव है जिसमें बहुत सारी चीजों को बहुत आसान तरीके से मनुष्य के लिए प्रेषित किया गया था। समय कालखंड को भी डिवीजन की पूरी टेक्निक थी, है, आई वुड से रेदर है। ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, you name the subject that is affecting you in current scenario and it will have the answers why it is there. A square plus b square is also derived from, the formula is also derived from the mathematical calculations जिसका वेद ज्ञान देता है। आपको ये बहुत अजीब लगेगा क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए नया है। पिछले 1200-1500 सालों में वेदों से हमें इतना दूर कर दिया गया है कि हम इन चीजों की बात करते हुए भी थोड़ा सा टैबू हमारे ऊपर रहता है। तो सृष्टि इतने वर्ष और जीनी है। मैं आपको एक श्लोक से इसका अर्थ समझाना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिए। इट्स अ डेफिनेटली एन अपग्रेडेशन फॉर ऑल ऑफ